Assalamu alaikum everyone. Let's do some paper ones. हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मई जून 2016 वेरिएंस 12 से. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. The diagram shows the Boltzmann distribution of energies in 1 mole of a gas. The gas can take part in a reaction with an activation energy EA. Which statement correctly describes the effect of an increase in temperature? That's a very, very important statement. Effect of increase in temperature. So जब हम temperature को decrease करते हैं तो जो top probable energy होती है वो drop हो जाती है and curve shift maximum to the right hand side, if you remember. So हम पढ़ना शुरू करते हैं. Peak B will be higher. Wrong. क्योंकि peak B जो है वो तो decrease होती है at higher temperature. Peak P will be higher. Again, B is wrong. Peak P will be lower. That's right. And fewer molecules will have energy greater than to activation energy. No. जब temperature increase करते हैं तो हमने आपको बताया है more molecules at high temperature, more molecules have energy greater than activation energy. दो पॉइंट्स लिखने के हैं यहाँ पर, दो पॉइंट्स समझने के हैं. पहला, कर्व shifts towards right hand side. And peak P decreases. ठीक है? And from this, D would be the right answer. Okay. 4 electronic configurations are shown below. 3 of these configurations belong to atoms of the elements chlorine, sodium, and vanadium. Which electronic configuration belongs to an atom of another element? Okay. तो सबसे पहले आपके पास है chlorine. Chlorine belongs to group 17 of the periodic table. So it has 7 valence electron. S orbital contain 2, p orbital contain 5. Right? Sodium belongs to group 1, so it has 1 valence electron. So S orbital contain only 1. Vanadium is a transition element. It has an atomic number of 23. So अगर मैं इसकी short form of electronic configuration करूंगा तो ये हो जाएगा argon 3d3 4s2. Now check. This is valence shell configuration s2p5 and that belongs to chlorine. इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि मुझे तो another element की डिस्कशन करनी है. Now S में 1 इलेक्ट्रॉन है, S में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है वैलेंस शेल में, इसका मतलब ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये गलत, ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी गलत. Now 3d3 and 4s2 वेनेडियम आया है तो 3d3 4s2 ये C वेनेडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी गलत. So जब A गलत B गलत C गलत तो राइट आंसर इज D. I hope it makes sense to you. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. Element X, Y are in the same group of the periodic table. The table shows the first 6 ionization energies of X and Y in kilojoules per mole. ठीक है? What could be the identities of X and Y? Guys, आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहाँ पर आ रहा है. सबसे बिगेस्ट एनर्जी गैप आपको कहाँ मिल रहा है. So we need to find out कि बिगेस्ट एनर्जी गैप कहाँ पर है. इन दोनों के दरमियान एनर्जी का गैप डिटरमिन करना है, यहाँ भी 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 डिटरमिन करना है. सेम हियर. ओके. यहाँ पर 800 आ जाएगा, 2400 माइनस 1600. अगेन यहाँ पर 800 आ जाएगा, 4300 minus 2400 is basically 1900. 5400 minus 2400, sorry,
5400 minus 4300 is basically 1100. सही है. And 10,400 minus 5,400, 5,000. ठीक है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 800 हो जाएगा. 27 minus 18, this is 900. 48 minus 27 is 2100. 6,000 minus 4,800, 1,200. And then 12,300 minus 6,000, 6,300. That means कि इन तमाम में सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप बिटवीन 5th and 6th है, और यहाँ पर भी 5th और 6th है. सो इसका मतलब ये हुआ बिगेस्ट energy gap exists between 5th and 6th electron. So first 5 electrons are removed from last shell. तो अगर last shell से 5 electrons गए, that means element belongs to group 5 of the periodic table. So हमें periodic data booklet में जाना पड़ेगा. हम data booklet में जाते हैं और हम देखते हैं कि periodic table में ग्रुप 5 में कौन कौन से एलिमेंट है. तो हमारे पास ग्रुप 5 में एंटीमनी है और आर्सेनिक है. तो एंटीमनी और आर्सेनिक ऑप्शन ए में है, which is why A is the right answer. In China, the concentration of blood glucose is measured in millimole per liter. In Pakistan, the concentration of blood glucose is measured in milligram per deciliter. The unit of liter is 1 dm3. The unit of deciliter is a deciliter, which is 0.1 dm3 basically. And that's an important part of the question. A blood glucose concentration 18.5 millimole per liter indicates a health problem. वो कह रहे हैं, what is 18.5 millimole per liter converted into milligram per deciliter? Okay. So first of all, सबसे पहली तो ये चीज देखिए कि 1 mole is always equals to 180 gram, which is the MR of glucose, right? C6H12O6. So अगर आपके पास 18.5 moles हैं, तो बताइए आपके पास मास कितना हो जाएगा? 18.5 into 180, it's going to be 3330 gram. आप जानते हैं कि 1 gram is always equals to 1000 milligram. तो अगर मेरे पास 330 ग्राम है, तो बताइए मिलीग्राम कितने हो जाएंगे? ट्रिपल 30 ग्राम. Okay, so no, actually the thing is, what we can do is कि हम मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले. याद रखिएगा 18.5 millimole is always equals to
18.5 into 10 to the power minus 3 moles of glucose. See, now the second step is MR of glucose आपके पास कितना है 180. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से मास ऑफ ग्लूकोज डिटरमिन कर लेते हैं. मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा आपके पास 180 इंटू, और मोल है मेरे पास 18.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सो बेटा मेरे पास आ जाएगा 180 इंटू 18.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3.33 ग्राम. कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू मिलीग्राम. तो मैंने आपको बताया था कि जी 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. तो ये हो जाएगा आपके पास 3.33 ग्राम इक्वल्स टू दिस. तो ये हो जाएगा 3330 milligram. Now we need to convert this per liter. We need to convert this liter. We need to convert this liter into deciliter. So what we can do is कि हम इस मिलीग्राम को डेसीलीटर में कन्वर्ट करते हैं. सिंस डेसीलीटर इज 0.1 dm3, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.1 से. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 333 milligram per deciliter. So on the basis of this, right answer would be C. Now the next question is, each of the 4 species in this question are isolated and gaseous. Which species is not planar? Guys, it has 3 single bond and a zero lone pair, so it is planar. Option wrong. 3 single bond and a 0 lone pair, so again planar. Option wrong. C2H4 between the carbon atom double bond hota hai. Geometry sp2 hybridization planar. Wrong. So right answer is D, because ammonia contain 1 lone pair and a 3 single bond, so its hybridization is going to be sp3, so its shape is going to be trigonal primitive. All right, so it's not going to be the planar one. Argon is a gas used to fill electric light bulbs. Under which conditions of pressure and temperature will argon behave most like an ideal gas? So under which condition of pressure and temperature argon behave most like an ideal gas? Most like an ideal gas. तो अगर temperature high करेंगे और pressure low करेंगे, so it's going to be an ideal gas. तो right answer is C. तो हम यहाँ लिख देते हैं at low pressure and high temperature, gas shows ideal behavior. ठीक है. Now the next is question number 7. He's saying 0.1 gram of volatile liquid X form 0.025 dm cube of vapor at 100 degrees Celsius and an atmospheric pressure. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि 1 mole of vapor occupy 22.4 dm cube at 0 degrees Celsius and an atmospheric pressure. Now we have 2 different situations. This one is the standard condition and this one is the stated condition, and he wants to find the relative molecular mass of X. So now we have 2 different situations. एक stated condition है हमारे पास और एक standard condition है हमारे पास. ठीक है. stated condition में हमारे पास फॉर्मूला है
फॉर्मूला है हमारे पास पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब आप नोट करें, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में प्रेशर जो है वो सेम है, राइट। और आप जानते हैं कि दोनों केसेस के अंदर आर भी सेम होगा, तो मैं एक्सप्रेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई कर लूं, P अपॉन आर इक्वल्स टू एन टी अपॉन वी। सही। अब मुझे पता है कि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी 1 dm क्यूब, वन 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 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस रिलेशनशिप यानी P अपॉन आर इक्वल्स टू एन टी, एन एन मेरे पास कितना है, एन मेरे पास इज मोल, और मोल किसके इक्वल होता है, मास अपॉन एम आर, राइट। तो मास मेरे पास कितना है, 0.1 ग्राम, 0.10 ग्राम इनटू टेम्परेचर मेरे पास कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 373 डिवाइडेड बाय वी। वॉल्यूम है मेरे पास 0.025 डीएम क्यूब, ठीक है, इनटू एम आर जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरे पास मोल कितना है 1, इनटू टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दीजिए, और वॉल्यूम जो है वो 22.4 डीएम क्यूब है। मैं क्योंकि दोनों केसेस के अंदर वॉल्यूम सेम रख रहा हूँ डीएम क्यूब में, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं 273 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल्स टू 0.10 इंटू 373 डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू एम आर। तो अगर मुझे एम आर कैलकुलेट करना हो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.10 इंटू 373 इंटू 22.4 divided by 0.025 इंटू 273। तो अब ये एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए कहां पर अवेलेबल है ऑप्शन में से, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। The equation for the complete combustion of propane 1-ol is shown. Under standard enthalpy changes of formation are given below. Guys, formation का डेटा given है, वो कह रहे हैं what is the standard enthalpy change of combustion of propane 1-ol, ठीक है। सो बेटा मेरे पास प्रोपेन 1-ol ये है C3H7OH प्लस 4.5 O2 एरो 3CO2 प्लस 4H2O, और वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। और क्योंकि फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हेसेसबर्ग साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रोपेनॉल की वैल्यू दी हुई है -303, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एग्जामिनर ने नहीं ली। कार्बन डाइऑक्साइड होता है -394, सिंस वी हैव 3 मोल्स इनटू 3 करूंगा, वाटर इज -286, वी हैव 4 मोल्स इन द इक्वेशन इनटू 4 करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, तो ये हो जाएगा x -303। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ना करूं। हम कर लेते हैं इसको x प्लस -303, ये हो जाएगा -394 टाइम्स 3, देन ये हो जाएगा -286 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 0। जब ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वल्स टू 0 के राइट हैंड साइड पे आएंगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा x इक्वल्स टू +303 प्लस 394
sorry, -394 into 3 -286 into 4. सो आप चेक कीजिए कि ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। ये ऑप्शन बी में लिखा है, आई थिंक सो। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ये पूरी अरेंजमेंट बी के अंदर अवेलेबल है, विच इज वाई बी इज द राइट आंसर। In the treatment of domestic water supplies, chlorine is added to the water to form HClO. ठीक है, ये equation आ गई, which is a disproportionation reaction. The HClO reacts further to give ClO negative ions. Both HClO and ClO negative kill bacteria by oxidation. What is the change in the oxidation number of chlorine when forming ClO negative ion? बेटा यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इस ClO नेगेटिव आयन के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो बेटा Cl2 से जब वो कन्वर्ट हो रहा है ClO नेगेटिव, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +1 है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है बिकॉज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब राइट आंसर इज सी। 0 to +1 इज बेसिकली +1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। When solid ammonium chloride dissociate at a certain temperature in a 0.5 dm³ container, ammonia and hydrogen chlorides are formed. ठीक है, the initial amount of ammonium chloride was 1 mole, and when the system had reached equilibrium, there was 0.3 moles of ammonium chloride. What is the numerical value of Kc for this reaction under these conditions? Okay, so it's quite complicated. आपके पास इक्वेशन है अमोनियम क्लोराइड, it is converting into ammonia and HCl. Initially अगर ये 1 था तो ये दोनों 0 होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर वो कह रहे हैं आपसे कि ये 0.3 है, तो ऑब्वियसली अगर मैं रिएक्टेड मोल्स यहाँ से निकालूं, ये हो जाएगा 1 - 0.3, सो इट्स गोइंग टू बी 0.7 मोल। तो इसका मतलब 0.7 मोल रिएक्ट होंगे, और मैंने कहा था जितने मोल्स रिएक्ट होते हैं उतने मोल्स फॉर्म होते हैं, तो ये 0.7 बनेगा। 1:1 के रेशियो की वजह से ये भी 0.7 बनेगा। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है इनको, तो मेरे पास 0.5 dm³ है, तो ये भी 0.3 0.5 से डिवाइड होगा, 0.7 0.5 से डिवाइड होगा, ये भी 0.7 0.5 dm³ से डिवाइड होगा। 0.7 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, so it's going to be 1.4। ये भी आपके पास 1.4 आएगा। ये कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास प्रोडक्ट की। Kc कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा Kc = 1.4 × 1.4। तो यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.4 × 1.4 इज गोइंग टू बी 1.96। तो 1.96 is the right answer. The right answer is C. Now the next question in the mind is, हमने रिएक्टेंट को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट में, और मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि जब भी सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस होगा हम उसको कैलकुलेशन में Kc की यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया। उसके बाद है आपके पास which stage in the free radical substitution of ethane by chlorine has the lowest activation energy? Lowest activation energy उसकी होगी जब रिएक्शन रैपिड होगा। ठीक है, फास्टर रिएक्शन has lower activation energy, right? अब प्रॉब्लम ये है कि फास्टर रिएक्शन उस वक्त होगा जहां पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, फास्टर रिएक्शन नहीं होगा। बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, इस मॉलिक्यूल में फास्टर नहीं होगा। बॉन्ड यहाँ पर भी ब्रेक होगा, फास्टर नहीं होगा। अब बॉन्ड यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं ब्रेक हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन फास्टर होगा, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर। बिकॉज जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम एंड सल्फर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड. How do the atomic radius and ionic radius of sodium compare to those of sulfur? आप जानते हैं सोडियम का across the period atomic size decreases. इस तरह से करें, across the period
atomic size decreases. और ये भी याद रखिए the size of anion is always greater than cation. ठीक है, सो सोडियम का रेडियस सल्फर से ज्यादा होना चाहिए बिकॉज सोडियम पहले है सल्फर बाद में, और सल्फर का रेडियस सोडियम से ज्यादा होना चाहिए आयनिक रेडियस में, तो राइट आंसर इज डी। वो कह रहे हैं सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड sublimes at 178 डिग्री सेल्सियस, which structure best represents the species in the vapor at this temperature. आप जानते हैं कि सोडियम क्लोर solid ammonium chloride when sublimes it undergoes dative bonding, it undergoes dimerization via dative bonding. और डायमराइजेशन में क्या होता है कि क्लोरीन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करता है, तो अगर क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करेगा तो जाहिर सी बात है डेटिव बॉन्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए और डेटिव बॉन्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो डेटिव बॉन्ड की डायरेक्शन इन दोनों में ठीक है, विच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, when AlCl3 sublimes it will dimerize and will turn to Al2Cl6 via dative bonding। और डेटिव बॉन्डिंग में लोन पेयर किस कौन देता है, क्लोरीन देता है एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर नहीं होती, इसलिए वो डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14, question number 14 is extremely important. Question says 0.005 mole sample of anhydrous calcium carbonate was completely thermally decomposed to give 100 cm³ of gas measured at a certain temperature and pressure. फिर वो कह रहे हैं in a separate experiment carried out at the same temperature and pressure 0.005 moles of sample of anhydrous calcium nitrate was completely thermally decomposed. The volume of gaseous product was measured. वो कह रहे हैं total volume of the gaseous product was produced from the calcium nitrate is, अच्छा पहली चीज तो ये हो गई कि आपको ये पता चल गया कि अगर इतने मोल्स हैं तो 100 cm³ ऑफ गैस है, तो मुझे ये मालूम करना है कि अगर इतना कैल्शियम नाइट्रेट है तो बताओ मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन। इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये 2 मोल है, और यहाँ पर टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं 5। ठीक है, ओके और अगर आपके पास 0.005 मोल्स हैं कैल्शियम नाइट्रेट के, तो बताइए मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे। तो ये मोल्स ऑफ गैस आपके पास आ जाएंगे 0.005 into 5 divided by 2, it's going to be 0.0125 मोल्स। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखिए, उन्होंने कहा है एक इंडिकेशन दी कि 0.005 मोल्स से आपको प्रोडक्ट कितनी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपने 0.0125 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.005, so it's going to be 250. The right answer is D. Ammonia gas and hydrogen sulfide gas reacts together to form the salt ammonium sulfide. Ammonium sulfide dissolves in water to produce an orange alkaline solution. ठीक है, the addition of sodium hydroxide, that's the important part, addition of NaOH to this solution produces a gas X. Whenever NaOH is added and a gas X is produced, it has to be an ammonia gas, right? Because when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given out. So gas X should be ammonia gas. Addition of HCl to a separate portion of this solution produces a gas Y. Okay.
So when ammonium sulfide is treated with HCl, it will turn to H2S gas. So हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं. पहली चीज अमोनियम आइंस को अगर मैं हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ ट्रीट करवाऊं यानी एल्किल के साथ, तो अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ, व्हिच इज योर गैस एक्स. ठीक है. दूसरी चीज, मेरे पास S माइनस आयन है और मैं उसको HCl यानी H प्लस से रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो इट विल टर्न टू H2S gas and which is your gas Y. ठीक है. So you have two gases now. The first one is ammonia, the second one is H2S. So right answer is C. A solid T was placed in an excess of liquid W. ठीक है. एक solid T है, उसको हमने place किया है excess liquid W में. फिर वो कह रहे हैं colorless gas was given off and a white precipitate was seen. The precipitate was not T. ठीक है. What could be the identities of T and W? अच्छा देखें, सबसे पहली बात, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जब ये दोनों इनसॉल्युबल होंगे तो जाहिर सी बात है कलरलेस गैस तो रिलीज नहीं होगी इन दोनों की एडिशन से. तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग. ठीक. अब जब आप कैल्शियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, इट विल टर्न टू कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे, और यहां से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी विच इज कलरलेस गैस. ठीक है. ठीक है बेटा. कैल्शियम और H2SO4 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और इसके कलरलेस सॉल्यूशन होगी और कलरलेस गैस होगी. लेकिन अगर मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम सल्फेट में और हाइड्रोजन गैस में. हाइड्रोजन गैस तो चले कलरलेस होगी, बट मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होता है बिकॉज डाउन द ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. यही पढ़ा है मैंने आपको. तो इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा और इसका कलरलेस सॉल्यूशन होगा. इसका मतलब इसके प्रेसिपिटेट्स ही मिलेंगे आपको. तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है. बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. नॉट डिसॉल्व. ठीक है. जब आप स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगी तो आपके पास सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनेगा तो प्रेसिपिटेट्स तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 17. Nitrogen oxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and unburned hydrocarbons are present in the exhaust gases of internal combustion engine. When catalytic converter are used to remove these compounds from exhaust gases, redox reaction occurs. That's what we have done in nitrogen and sulfur topic. What happens to each of the compound in the catalytic converter? NO will turn to nitrogen. तो NO जो है वो रिड्यूस होगा, NO2 will turn to nitrogen, ये भी रिड्यूस होगा. CO will turn to कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडाइज होगा. हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं. तो राइट आंसर इज सी. दैट्स एन इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. Excess of chlorine is passed through 60 cm cube of cold aqueous 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide. In a separate experiment, excess of chlorine gas is passed through 60 cm cube of hot aqueous 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide until no further reaction takes place. How much more of sodium chloride will be produced by the reaction with hot NaOH and then with cold NaOH? Okay. So guys, मेरे पास cold NaOH की equation थी 2 NaOH plus Cl2 arrow NaCl plus NaClO plus H2O.
ठीक है, ये 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है। सो आप क्या करें, आप यहां से मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लें फॉर कोल्ड कंडीशन। 0.1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ मोल। तो अगर ये 6 इंटू 10⁻³ मोल है, तो बताइए ये कितना होगा। बेटा ये हो जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ NaCl इज 3 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये कोल्ड कंडीशन से मैंने डिटरमिन किया। हॉट कंसंट्रेटेड कंडीशन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O में। जनाब सबसे पहले तो मैं यहां से मोल्स ऑफ NaOH निकालूंगा। मुझे एक्चुअली मोल्स दिए में, तो 60 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसके भी मोल्स सेम ही आएंगे, विच इज 6 इंटू 10⁻³ तो बेटा ये 6 मोल्स हैं, ये 5 मोल्स हैं। अगर आपके पास 6 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, तो बताइए ये कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ NaCl इस केस में कितने आ गए मेरे पास, 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने होंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास वो पूछ रहे हैं हाउ मच मोर सोडियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ विद हॉट एंड दिस। सो बेसिकली मैं मुझे यहाँ से क्या डिटरमिन करना है, मोर मोल्स ऑफ NaCl। तो आप जानते हैं ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और आप जानते हैं कि कोल्ड NaOH वाला लिमिटेड अमाउंट है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो राइट आंसर इज ए। Question number 19. Fluorine and iodine are group 17 elements. Their melting points are different due to different strength of van der Waals forces between molecules. तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं आयोडीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, सो वैन वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी। ठीक है, तो आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो राइट आंसर इज सी। दैट्स एन इजी स्टेटमेंट कि मोर इलेक्ट्रॉन्स strong van der Waals forces, and strong van der Waals forces means high melting point. Question number 20. Chlorofluorocarbons damage the ozone layer by undergoing reaction with a free radical mechanism. The first stage of this is initiation, which equation is most likely to be the initiation stage when chlorofluoromethane is involved in such a reaction. तो आप जानते हैं कि जब भी इनिशिएशन होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सो गाइस हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं डेटा बुकलेट में। डेटा बुकलेट में हमें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। हमें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज गिवन है, CH410 होती है, फिर आपके पास है CF आई बिलीव नहीं है हमारे पास, CCl है हमारे पास 340, एंड ऑब्वियसली CCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो अबव 340 होगी, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है CF का एज कंपेयर टू
CCl, या ठीक है। तो CF का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन CCl, इसका मतलब ज्यादा होगी, अब 340 होगी। तो बताइए सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा CCl का, CCl बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि वो सबसे वीकर बॉन्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा मेरे पास? बी, क्योंकि बी के अंदर CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है। डी इसलिए गलत है क्योंकि CF और CF बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है। सी इसलिए गलत है क्योंकि CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है। ये इसलिए गलत है क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। 21. Synthetic resins can be made by polymerization of a variety of monomers, including prop2-ene-1-ol. Which structure represents the repeating unit in prop2-ene-1-ol? मैंने कहा था कि जब भी कोई मोनोमर मिले आप उसको वर्टिकली अरेंज करें इस तरह से। यहाँ H है और ये CH2OH है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ बी के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22. Oct1ene can be thermally cracked. Which combination of compounds W, X, Y and Z can be obtained by thermally cracking Oct1ene? तो आप जानते हैं यहाँ पर 8 कार्बन एटम्स हैं। अगर मैं Oct1ene की थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा तो मुझे W भी मिलेगा क्योंकि शॉर्ट चेन है, X भी मिलेगा, Y भी मिलेगा, Z भी मिलेगा, बिकॉज ये शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन से एक साथ तीनों नहीं मिलेगा, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब ये वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ये चारों पॉसिबल होंगे Oct1ene की डिकम्पोजिशन करने पर, बिकॉज लॉन्ग चेन एल्को और हाइड्रोकार्बन से शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन मिलते हैं हमें। A cycloalkene with the molecular formula C7H12 was oxidized by hot concentrated esterified magnate 7 ions. Okay. The only product was 2-methylhexane 1,4-dioic acid. Okay. What is the identity of cyclohexane? ठीक है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि इसमें डायोइक एसिड है, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है। डायोइक एसिड का मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मीनिंग 2COH ग्रुप। तो देखो ये ऑप्शन रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये डबल बॉन्डेड C है, इट गिव्स कीटोन। ठीक है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग क्योंकि ये डबल बॉन्डेड C है, गिव्स कीटोन। तो मुझे कीटोन तो मिल ही नहीं रहा, मुझे तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड के साथ CH है तो COOH, ये भी डबल बॉन्ड के साथ CH है तो COOH, राइट। आप नोट करें, ये भी डबल बॉन्ड के साथ CH है तो COOH, ये भी डबल बॉन्ड के साथ CH है तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH, राइट। सो अब हम यहाँ पर कार्बन एटम को नंबर असाइन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी COOH फर्स्ट कार्बन पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है। तो फर्स्ट और 6 कार्बन पे COOH है तो ये 1,6 डाइओइक एसिड प्रूफ हो गया, और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल आ गई तो 2' मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन एटम को हेक्सेन कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक्चुअली फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ब्रांच है, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड 2 मिथाइल लिखा है उसने, 4 मिथाइल नहीं लिखा उसने। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। 24. 1-chloro-1-methyl cyclohexane is hydrolyzed by heating with NaOH. Okay, the diagram reaction pathway is shown below. ठीक है। 1 carbon atom in 1-chloro-1-methyl cyclohexane is bonded to 3 other carbon atom. What is the charge on this carbon atom at point Z? आप नोट करें, ये एक टर्शी अल्काइल हैलाइड है। टर्शी अल्काइल हैलाइड always undergoes SN1 mechanism.
जहां पर टू हम्स का ग्राफ मिल रहा है एंड द वैल्यू बिटवीन द टू हम्स रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट एंड द इंटरमीडिएट शुड बी कार्बोकैटाइन, और कार्बोकैटाइन जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा मेरे पास? बी। हम यहां लिख देते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। एक बात तो ये जहन में रखने की थी और दूसरी बात ये जहन में रखने की थी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान में रख के मैंने आंसर डिटरमिन किया। क्वेश्चन नंबर 25, मैलिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स, which reagent will react with only one of the OH groups in the malic acid molecule? अच्छा जी, with only one of the OH groups in the malic acid molecule। देखिए इथेनोइक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और एस्टर बना लेगा। ये जो सोडियम है ये इसलिए रॉन्ग है बिकॉज ये अल्कोहल से भी रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्शन करेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ COH से रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड COH से रिएक्शन करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ए। वो कह रहे हैं वन ऑफ द OH, ठीक है। तो मैं सोडियम नहीं ले सकता, मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं ले सकता, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकता, क्योंकि ये तीनों रिएजेंट इन दोनों से रिएक्शन करेंगे। वो कह रहे हैं एक से रिएक्शन करे सिर्फ। 26, which organic compound would not give either a yellow precipitate when treated with alkaline aquacidine or an orange precipitate when treated with 2,4-dinitrophenylhydrazine? अगर वो कह रहा है would not either give a yellow precipitate when treated with alkaline aquacidine, तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3CO ग्रुप अवेलेबल नहीं है या फिर CH3CHOH ग्रुप अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, एक बात तो ये जहन में रखें। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं treated with 2,4-DNPH, 2,4 no DNPH means not an aldehyde, no 2,4-DNPH का टेस्ट, no aldehyde and ketone। ठीक है, तो ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, तो राइट ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड है। ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये कीटोन है। तो राइट आंसर इज आइदर बी और सी। सी भी गलत हो जाएगा, पूछे क्यों? इसलिए प्रोपेन टू ओल इज CH3CHOH, इसमें हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया क्योंकि एल्डिहाइड में नहीं होगा, कीटोन में भी नहीं होगा, और सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें CH3CHOH अवेलेबल है, तो ये हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ना हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा ना ही 2,4-DNPH। फिर वो कह रहे हैं इन विच रिएक्शन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं टॉलरेंस रिएजेंट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट आंसर इज ए। फिर वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडर रिफ्लक्स विद एन एक्सेस ऑफ हॉट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6।
आप जानते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो जाहिर सी बात है सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, विच मींस सिर्फ दो कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, विच इज वाई बी इज द राइट आंसर। तो यहां लिख देते हैं कि ओनली अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात कर लेता हूँ। ओनली प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड गिव्स carboxylic acid when treated with K2CR2O7. Question 29. How many isomeric esters, including structural isomer and stereoisomers, that can be made with the molecular formula this if methanoic acid is one of the two reactant used? Okay. That's technical part. We need to draw such structures जो कि methanoic acid से बन रहे हो। चलिए बनाते हैं, कोई इशू नहीं है। This is CH3COO2 3 4 and this one is 5. Okay, then CHO एक ब्रांच मैंने यहाँ अटैच कर दी। This is CH2, this is CH3, फिर यही ब्रांच मैं इस वाली कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इस ब्रांच को उठाकर मैं इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी था, ये भी शिफ्ट कर दिया और ये CH3, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और बेटा ये कायरल कार्बन भी तो है, फिफ्थ हो जाएंगे, ठीक है। उसने एक्चुअली क्या किया, फोर्थ तो ये बने हुए कायरल की वजह से एक डेक्स्ट्रो और एक लेबियो रोटेटरी आएगा, तो उसने क्या किया है, उसने तो उसूली तौर पे 6 होने चाहिए थे लेकिन उसने 5 दिए हमें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसने उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो हमने लेबियो रोटेटरी लेकर 5 कर दिया। वो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड X C4H8O2 has an unbranched carbon chain. Aqueous solution of X has an approximate pH of 3, ठीक है, यानी ये एसिडिक है। कंपाउंड Y C3H8O is a secondary alcohol. ओके, सो गाइस एक बात तो तय हो गई कि अगर इसकी pH 3 है तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, यानी ये प्रोपेन 2-ओल है। X and Y are reacted together in the presence of little sulfuric acid, meaning formation of ester हो रहा होगा क्योंकि it acts as a catalyst. तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Z, मतलब एस्टर का स्ट्रक्चर बनाइए आप। तो जनाब CH3 CH2 CH2 COOH, ये अनब्रांच्ड कार्बन चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। 3 कार्बन एटम का अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 2-ओल, उसको लिखिए यहाँ पर। आप जानते हैं यहाँ से OH, आप जानते हैं यहाँ से H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2, फिर हो जाएगा आपके पास CO के बाद क्या आएगा O के बाद क्या अटैच है CH, इस CH के साथ 2 CH3 हैं, ये आ जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CO2 CH CH3 taken 2,
ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH2 टेक इन टू CO2 CH CH3 टेक इन टू। अब ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन लिखा हुआ है बी में, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लिखने का स्टाइल है बस। क्वेश्चन नंबर 31, बाय द वे ये सेक्शन बी जो है ये मैं करवा रहा हूँ, कुछ पेपर्स के करवा दूंगा आप लोगों को ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज सेक्शन बी इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स एनीमोर, इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, ये अब नहीं आएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे हैं। एनालिटिकल स्किल्स काफी अच्छे हो जाते हैं इनको प्रैक्टिस करने से, तो हम कर लेते हैं कुछ पेपर्स के, फिर आगे चल के नहीं करेंगे हम। ठीक है। In an experiment, 10 cm cube of an organic compound J in the gaseous state was sparked with an excess of oxygen. 20 cm cube of carbon dioxide and 5 cm cube of nitrogen were obtained among the products. All gas volumes were measured at the same temperature and pressure. That's the statement. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड J का वॉल्यूम है और ये दो चीजें बन रही हैं उसकी कंबस्शन से। What could be the identity of J? तो बेटा ये ट्रायल एंड एरर की हेल्प से करेंगे, आप वन बाय वन सबकी इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बना के वॉल्यूम को कोरिलेट करेंगे। तो देखिए मैं इक्वेशन बना रहा हूँ C2H3N, ये मैंने इस ऑप्शन की बात की है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ओके तो इसमें हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं हो रहा, तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया। जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा कार्बन को बैलेंस करने के लिए। ठीक, नाउ इट्स मेक सेंस। 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। चले, अब देखिए ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, ये 1 मोल है। तो भाई अगर आपने इसका 20 cm³ लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 40 cm³ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 cm³ हो जाएगा। यानी रेशो क्या बन रहा है? रेशो ये बन रहा है 10 cm³। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको और आसान कर देते हैं। ये रेशो बना हुआ है आपके पास, आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 10 cm³। तो जाहिर सी बात है ये ट्वाइस होकर कितना हो जाएगा? 20 cm³, क्योंकि 4 मोल है और ये 2:1 का रेशियो है, तो ये 5 cm³ हो जाएगा। तो देखें 20 cm³ और 5 cm³ सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं। टैली हो गया। हम थर्ड की बात कर लेते हैं। ये है आपके पास C2H7N और हम इसको किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा क्योंकि मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 लगाऊंगा, 2 7 14, तो यहाँ पर 7 लगाऊंगा बेटा मैं। सही है। सो अब देखिए ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, ये 1 मोल है। तो अगर मेरे पास ये 10 cm³ है तो ये 20 cm³ हो जाएगा और 2:1 का रेशियो है तो 10:5 का रेशियो हो जाएगा। तो ये भी टैली हो गया, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर है सी। फर्स्ट वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाली को भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा C2H6N2, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, नाइट्रोजन में। ठीक है, ये आपके पास 1 मोल है, ये आपके पास 2 मोल है, ये आपके पास 1 मोल है। अगर ये 10 cm³ है तो जाहिर सी बात है
ये 20 cm³ हो जाएगा, और ये 10, ये 1:1 का रेशो है इन दोनों के दरमियान, तो जाहिर सी बात है ये भी 10 cm³ ही होगा। तो क्योंकि ये 10 cm³ आ रहा है जबकि इसको आना कितना चाहिए 5 cm³, इसलिए फर्स्ट जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा मेरे पास, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, 3 elements x, y and z have electronic configuration as shown. Which formula represents compounds that conduct electricity in a liquid state, molten form? अच्छा देखें, दो चीजें हैं। पहली तो ये कि ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी बात ये कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, नॉन मेटल। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या हो गया, नॉन मेटल, और ये आपके पास क्या हो गया भैया, मेटल। राइट। अब ये ग्रुप 16 का है तो इसके ऊपर चार्ज -2 होगा, ये ग्रुप 17 का है तो इसके ऊपर चार्ज -1 होगा, और अगर ये ग्रुप 1 है तो इसके ऊपर चार्ज +1 होगा। राइट। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये बनेगा Y2X, जो कि ये लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड बन गया ना बेटा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। और जब आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो X और Y का आयनिक कंपाउंड अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा, चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद X2Y, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा YZ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर इज बी। चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने सिंपली। ठीक है। So x carries -2 charge, y carries +1 charge, z carries -1 charge. If you cross multiply these charges, you will get these formulas. ये formulas यहाँ लिखे हैं, यही आंसर है आप। Question number 33. In this question, all gases can be assumed to behave ideally. A chemist heats a mixture of nitrogen and oxygen gases in a sealed container at a constant temperature until the mixture reaches a dynamic equilibrium containing nitrogen and oxygen and nitrogen monoxide. The chemist repeats the experiment at the same temperature using the same initial amount of nitrogen and oxygen, but at a much higher temperature. ठीक है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। Which statement about the second experiment at high pressure are correct? जब प्रेशर ज्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स भी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा ही होंगे, तो पहला स्टेटमेंट राइट। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर डज नॉट चेंज, दैट्स आल्सो राइट, बिकॉज प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड जा रहा होता है या बैकवर्ड जा रहा होता है, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। फिर वो कह रहे हैं देयर आर मोर कोलिजन्स पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो थर्ड भी ठीक है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। An ethanol burner can be used to heat water if appropriate measurements are taken. A value of the enthalpy change of combustion of ethanol can be calculated. The equations. ठीक है, ये इक्वेशन अगर आपको याद हो, डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है, लेकिन उसने एंथैल्पी की फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये माइनस का साइन लगा हुआ है। Is used as part of the calculation which symbol are correctly described. Delta T is the change in temperature of the water. That's correct, क्योंकि change in temperature हमेशा mass of water के थ्रू मिलता है हमें। M is the mass of water used in the experiment. That's also correct. मैंने कहा जब भी ये equation use होती है हम M जो है वो mass of water लेते हैं। C is the specific heat capacity of ethanol. That's incorrect. Specific heat capacity water की होती है हमेशा, ethanol की नहीं होती है। तो right answer is B. First भी ठीक है, second भी ठीक है, right answer is B. Question number 35. The first ionization energies of 20 successive elements in the periodic table are represented in the graph. यार याद रखिएगा
20 सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं. The letters are not the normal symbols of the element. ठीक है. Which statement about this graph is correct? Element B, J and R are in the same group 18 of the periodic table. Guys, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये आपके पास नोबल गैस ग्रुप 18, ये भी क्या होगा नोबल गैस ग्रुप 18, और ये भी क्या होगा आपके पास नोबल गैस ग्रुप 18, क्योंकि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज नोबल गैसेस की होती हैं. तो बी नोबल गैस है, जे नोबल गैस है और आर नोबल गैस है. तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया. ठीक है, बस स्टेटमेंट इज राइट. फिर वो कह रहे हैं atoms of element D and L contain 2 electrons in their outer shell. अगर ये नोबल गैस है ग्रुप 18 है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रुप 1, ये क्या हो जाएगा ग्रुप 2. तो अगर ये ग्रुप 2 है तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर ये नोबल गैस है तो ये क्या हो जाएगा ग्रुप 1, ये क्या हो जाएगा ग्रुप 2. तो इसका मतलब एल के भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे ग्रुप 2, और ये भी क्या होगा ग्रुप 2. राइट आफ्टर नोबल गैस ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया. इस तरह से जज करें. देखो किस तरह से, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8. सही है, ये क्लास में शेयर किया, नोट्स में लिखा हुआ है. ये एटम्स ऑफ एलिमेंट G and O contain a half filled set of p orbital. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझो. कंटेन अ हाफ फिल्ड p सबशेल, यानी p सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो p सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे वो इसमें होंगे. ये ग्रुप क्या है आपके पास 15 है ना, और ये भी ग्रुप कौन सा है आपके पास 15 है. तो ग्रुप 15 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एस में कितने होते हैं 2, पी में कितने होते हैं 3. तो अगर पी में 3 होंगे तो हाफ फिल्ड हो गया ये. इसमें भी यही होगा, एस में 2 होंगे, पी में 3 होंगे, तो ये भी हाफ फिल्ड हो गया. तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है एग्जामिनर ने. तो थर्ड भी बिल्कुल ठीक है. तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ए. Which properties increases the sequence hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide? Increase कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो तो डिक्रीज हो जाती है, राइट. तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इजीली. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. राइट आंसर इज सी. आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू आयोडीन, ब्रोमाइड आयंस ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू ब्रोमीन. क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट विल रिमेन इनटू क्लोराइड if you remember the notes. The diagram shows a compound used as a flame retardant. ठीक है, which statement about the structure are correct? The empirical formula is C2H3Br. बिल्कुल सही बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन्स हैं. हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन हैं. ब्रोमीन काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन है. तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा C2 H3Br. तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. ठीक है, मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है. C12 रिंग इज नॉट प्लेनर. बिल्कुल सही बात है. ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये कार्बन, ऑल ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल. तो प्लेनर तो नहीं हुई. ये ऑप्शन गलत हो गया. जब सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है तो 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है. इस जगह पे 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है, विच इज वाई डी इज द राइट आंसर.
ओ नहीं नहीं, ये भी सही है, माय बैड, इट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज प्लेनर तो नहीं है ना वो, तो ये करेक्ट है। देयर आर 6 कायरल कार्बन एटम्स, यस, जितने जगहों पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो सब कायरल कार्बन है। ये भी कायरल, कायरल, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली ए हो जाएगा बेटा हमारे पास। उसके बाद है आपके पास, वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ टी ट्री ऑयल इज टर्पिनिन 4-ol. In the diagram of the skeletal formula of terpinin 4-ol, 3 of the carbon atoms are labeled 1, 2, and 3. Which of the labeled carbon atoms are chiral? 1. ठीक है, only this carbon atom is chiral. जहां डबल बॉन्ड होता है वहां chiral नहीं होती। ये दो सिमिलर ग्रुप हैं तो ये भी chiral नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। 39. Propanol reacts with hydrogen cyanide to form 2-hydroxybutane nitrile. A suitable catalyst for this reaction is sodium cyanide. Which statement about the reaction of propanol with hydrogen cyanide are correct? Sodium cyanide provides a stronger nucleophile than HCl. Obviously, that's right, because ये weak acid होता है. It partly ionizes in aqueous medium, whereas sodium cyanide is an ionic compound. It ionizes fully in aqueous medium. So right answer, yeah, this is first statement is right. The reaction can be classified as nucleophilic substitution. That's wrong. ये तो wrong हो गया, और वो पूछा यार करेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो जब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, आंसर ऑब्वियसली डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, विच सिंथेसिस विल बी सक्सेसफुल? ये रॉन्ग, इसलिए क्योंकि एल्कीन और AlCl4 कैन नॉट रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, कीटोन, जब आप इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिड्यूस करवाएंगे इट विल टर्न टू सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए, ये एल्डिहाइड है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिड्यूस होगा इट विल टर्न टू प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। वी आर डन विद द फर्स्ट पेपर। होपफुली कि आपको समझ में आया हो।